हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट रीड कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, उसमें मैंने आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। हमारी वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल में भी बताया था कि व्हेन वी विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देन वी विल वेरियस फैक्टर kept in our mind. Same as when we will decide working capital for our organization, for our business concern, when various factors which affect our decision. Okay, in this first factor is nature of business. In nature of business, first we will check the type of business. That means our business is retail shop or trading concern. If we are doing trading concern and if we have retail shop, then our working capital requirement will be small in quantity. क्यों लगेगी हमें स्मॉल क्वांटिटी, क्यों हमें कम लगेगी? क्योंकि हमारी जो रिटेल शॉप होती है उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, शॉर्ट होता है। उसका जो ऑपरेटिंग जो पीरियड होता है वो कम होने के कारण हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। इसके अपोजिट अगर हम होलसेलर हैं तो एज़ कम्पेयर टू रिटेल शॉप we need more working capital because we have to maintain more inventory in our business organization. And second hand, wholesaler deals in क्रेडिट पॉलिसी. ओके, होलसेलर क्रेडिट पॉलिसी को बहुत फॉलो करता है, उसकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरल होती है. तो इन दैट सिचुएशन ही हैज़ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन हिज बिजनेस. दैट्स वाई ही नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल. And suppose you are a manufacturing company, you have manufacturing company, then you need huge amount in working capital because your work is manufacturing work and you have to purchase more raw material and after then you have to convert in finished goods and you need more working capital for this type of business. So first we will check our nature of business and then we will decide our amount of working capital. Second point is scale of operation. In this point, the firm operating at large scale need to maintain more inventory, more debtor, so they generally require large working capital, whereas firm operating cycle is less, then it require less working capital. Next point is business cycle fluctuation. In this, we will discuss about boom period and depression period. If in the market boom period, then we need more working capital and in the depression period we require less working capital because in depression period there is no need to maintain more inventory and more production. नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल फैक्टर. इसमें दिया है कि द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनीज विच सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन, वेयर इज द कंपनी विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग सीजन एज मोर डिमांड, मोर स्टॉक हैज़ टू बी मेंटेन, फास्ट सप्लाई इज नीडेड, वेयर इज ड्यूरिंग ऑफ season of slack season demand is very low, so working capital is less working capital is needed. देखिए, इन सीजनल फैक्टर में आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सीजनल प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो इन द पर्टिकुलर सीज़न वी नीड मोर अमाउंट इन वर्किंग कैपिटल. बट अगर आपका बिज़नेस सीजनल नहीं है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इसमें आप वेरियस एग्जांपल्स दे सकते हो. जैसे सपोज़ अगर आप रेनी सीज़न के जो आइटम्स होते हैं उसका आप बिज़नेस करते हो तो इन particular season, in rainy season you need more working capital, but in other seasons you require less working capital. Okay, our next point is technology and production cycle. देखिए, if a company is using labor intensive technique of production then more working capital is required because company need to maintain enough cash flow for making payment to labor, whereas if company is using machine intensive technique of production then less working capital is required because investment in machinery is fixed capital requirement and there will be less operative expenses. देखिए, if we are using labor intensive technique then we have to pay more amount to our laborer, that's why we require more working capital.
इसके अदर देन इफ़ वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑब्लिक मशीन इंटेंसिव टेक्निक देन वी रिक्वायर फिक्स्ड कैपिटल नॉर वर्किंग कैपिटल. ओके, so at that time we want less working capital. And in this production cycle also, so in case of production cycle, if production cycle is long, then more working capital will be required because it will take long time for converting raw material into finished goods, whereas when production cycle is small, lesser fund are tied up in inventory and raw material, so less working capital is required. That means अगर आपका production cycle longer है, then you need more working capital, and your production cycle is short, then you need less working capital. Our next point is credit allowed. देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि इफ़ वी आर गिविंग क्रेडिट पॉलिसी टू आवर डेटर इन लिबरल फॉर्म देन वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आपने स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो कर रखी है देन यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल. एंड सेम एज नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिट अवेल. अगर आपको आपके सप्लायर लिबरल पॉलिसी पर गुड्स अवेल करवा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. और इसके अदर देन अगर आपसे वो स्ट्रिक्टली टाइमली अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आपके सप्लायर, तो एट दैट टाइम यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इफ़ आवर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ पर आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बट अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी लो है तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल लगेगी. नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. देखिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है. सपोज़ अगर आपको रॉ मटेरियल ईजीली कम कॉस्ट पर अवेलेबल है देन नो नीड टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल इन लार्ज अमाउंट. बट अगर रॉ मटेरियल आपको ईजीली अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू मेंटेन मोर अमाउंट इन वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेवल ऑफ कंपटीशन. देखिए लेवल ऑफ कंपटीशन भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. जैसे इन्होंने बताया है कि अगर हमारे मार्केट में हमारे वेरियस कॉम्पिटिटर हैं देन हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए एक तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें अपने यहाँ पर काफ़ी सारा कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड सेकंड थिंग, आपको जो गुड्स का सप्लाई करना है वो टाइमली करना पड़ेगा, इसलिए आपको इन्वेंट्री को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर आपका लेवल ऑफ कंपटीशन हायर है तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, और अगर आपका लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन you will decide your working capital requirement as per your choice. नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब हमारे प्राइस हायर होते हैं, तो एट दैट टाइम हमारी वेजेस भी महंगी मिलेगी और हमारा गुड्स भी महंगा मिलेगा. तो अगर इन्फ्लेशन का पीरियड है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, और जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन दिस इज़ डिफ्लेशन. मतलब यहाँ पर आपके प्राइस कम हो जाते हैं तो एट दैट टाइम raw material and wages will be cheaper, so you require less working capital. And the last point is growth prospects. यहाँ पे दिया है कि firms planning to expand their activities will require more amount of working capital. As far as expansion, they need to increase scale of production, which means more raw material, more input etc. So more working capital also. मतलब अगर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, और अगर आपके ग्रोथ के चांसेस कम हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी. ये आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक आपको जो दे के रखा है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो जो टॉपिक हमने पूरे अभी रीड किए हैं उन्होंने यहाँ पर उसको कंपेयर करके बताया है. तो ये टॉपिक आप लोग सेल्फ रीड करेंगे ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को और ज़्यादा कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. हैव अ नाइस डे.